Now, in today's lecture, we will going to start with our third chapter, that is software development methodology. So, software development SDLC. Our third chapter is software development life cycle. Okay, so let's start. Our third chapter is software development life cycle. In this chapter, in this chapter, we are going to see about what is software development life cycle, activities of SDLC, software development life cycle, also called as SDLC. So we are going to see activities in SDLC, then generic process model, introduction of generic process model, activities of generic process model, then advantages of generic process model, process flow, how generic process models activities are flow. There are different type of process flow in generic process model. Then in third point, there are prospective process model, in which waterfall model, incremental process model, evaluationary process model. In evaluationary process model, there are two types of model: prototyping model and spiral model. So let's start with our lecture. First point is, in our lecture, in today's lecture, first point is introduction. So, software development life cycle is a process used by the software industry to design, develop, and test high quality software in lowest cost and shortest time. SDLC जो है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल प्रोसेस जो है, वो क्यों यूज करते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में? टू डिजाइन सॉफ्टवेयर, टू डेवलप सॉफ्टवेयर, टू टेस्ट हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर. हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर जो बनाते, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो सॉफ्टवेयर बनाती है, वो SDLC या दूसरे कोई मॉडल्स है, तो SDLC लाइफ साइकिल की जो प्रोसेस है वो यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए और टेस्ट करने के लिए इन लोएस्ट कॉस्ट एंड शॉर्टेस्ट टाइम, लो कॉस्ट और शॉर्ट टाइम में वो सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना है, डेवलप करना है और टेस्ट करना है, तो इसके लिए SDLC जो है वो यूज किया जाता है. The SDLC aims to produce a high quality software that meets or exceeds customer expectations, reaches completion within time and cost estimates. अब SDLC में क्या होता है? जो हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर कंपनीज डेवलप करती है, जो इंडस्ट्रीज डेवलप करती है, SDLC का यूज करके वो एम्स जो है, जो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन है, वो एम्स को वो मीट करती है. उसका कंप्लीशन जो होता है वो विद इन टाइम होता है और कॉस्ट जो होता है वहां पे कम होता है. अगर हमारा प्रोजेक्ट विद इन टाइम कंप्लीट हो गया तो हमारा कॉस्ट भी वहां पे कम लगता है. इट इज वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस. इट इज वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टू डेवलप द इंटेंडेड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. अब SDLC जो है एक स्ट्रक्चर, सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में उसके स्टेजेस जो है वो वेल डिफाइन किए गए. अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टू डेवलप द इंटेंडेड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, जो सीक्वेंस है उसी हिसाब से वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो है, जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो डेवलप किया जाता है. Okay, SDLC provides a series of steps to be followed to design and develop a software. SDLC provides a series of steps to be followed to design and develop a software product efficiently. अब SDLC में क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर है वो एक
वो सीरीज ऑफ स्टेप्स रहता है। एसडीएलसी में जो प्रोसेस जो स्टेप्स है, जो फेजेस है, उनको फॉलो करते हुए जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, वो इफिशिएंटली डेवलप किया जाता है, डिजाइन किया जाता है और डेवलप किया जाता है। नाउ एक्चुअल में एसडीएलसी लाइफ साइकिल क्या होता है? तो दिस इज द डायग्राम ऑफ SDLC life cycle represent the process of developing software. SDLC framework includes the following step. अब SDLC में following step जो होती है वो include होती है. This is the diagram of SDLC. First phase of SDLC is requirement analysis, then designing, coding, testing, and deployment. This is the complete life cycle of software development life cycle. Okay. डायग्राम समझ में आया? ये फेजेस जो है ये आपको याद रखने हैं और इनका जो सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में आपको डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना है। गॉट इट? यस और नो? यस। ओके, सो ये सीक्वेंस जो है, ये इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है, क्योंकि अगर ये सीक्वेंस चेंज होता है तो ये गलत हो जाता है। ओके, फर्स्ट फेज इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस, देन सेकंड इज defining requirement, then third phase is designing, fourth is coding, fifth is testing, deployment and maintenance. So ये सात phases होते हैं SDLC में. Someone is unmute, please mute yourself. So these are the 7 phases of SDLC model. Now first phase of SDLC model is the stages of SDLC are as follows. उसका first stage क्या है? Planning and requirement analysis. Requirement analysis is the most important and necessary stage in SDLC. Requirement analysis जो है एक बहुत ही important stage है SDLC का. The senior members of team this requirement analysis is the most important and necessary stage in SDLC. The senior members of the team perform it. स्टूडेंट्स प्लीज आप ना जल्दी ज्वाइन किया करिए, फिर लेक्चर चालू हो जाता है, उसके बाद आप लोग ज्वाइन करते हो, डिस्टरबेंस होता है लेक्चर में। अब याद रखो, इसके बाद 10 मिनट के बाद मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगी लेक्चर में। ओके, सो रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो है वो पहला स्टेज है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप होता है एसडीएलसी मॉडल का। क्यों? क्योंकि हमें कस्टमर से रिक्वायरमेंट लेना है। द सीनियर मेंबर्स ऑफ द टीम परफॉर्म इट विद इनपुट्स फ्रॉम ऑल द स्टेक होल्डर्स एंड डोमेन एक्सपर्ट और एसएमईज इन द इंडस्ट्री। आप एसडीएल ये जो फेज है ये कौन परफॉर्म करता है? एक सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें टीम रहता है, पूरा एक टीम रहता है। जो सीनियर मेंबर्स होते हैं टीम के, वो क्या करते हैं? जो स्टेक होल्डर्स रहते हैं, मीन्स जो कस्टमर्स रहते हैं या डोमेन एक्सपर्ट्स रहते हैं, उनसे रिक्वायरमेंट्स लेते हैं। वो कस्टमर उनको रिक्वायरमेंट देता है, फिर सीनियर मेंबर क्या करते हैं? उस पर एनालिसिस करते हैं। फिर डोमेन एक्सपर्ट जो होता है वो क्या करता है? वो बताता है कि उसको एक्चुअल में क्या चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी उनको चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी में उनको ये डेवलप करके चाहिए प्रोडक्ट, वो सब जो है वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में आता है। प्लानिंग फॉर द क्वालिटी अश्योरेंस रिक्वायरमेंट and identification of the risk associated with the project is also done at the stage. अब इस स्टेज में क्या होता है? क्वालिटी एश्योरेंस रिक्वायरमेंट
और रिस्क क्या क्या आ सकती है प्रोजेक्ट में, वो उसका प्लानिंग भी किया जाता है, और क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड रह सकती है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो वो भी आइडेंटिफाइड जो है इस फेज में किया जाता है. बिजनेस एनालिस्ट एंड प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजर सेट अप अ मीटिंग विद द क्लाइंट टू गैदर ऑल द डेटा लाइक व्हाट द कस्टमर वांट्स टू पिक. बिजनेस, हर एक कंपनी में बिजनेस एनालिस्ट रहते हैं, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजर या प्रोजेक्ट मैनेजर जिसे हम बोल सकते हैं, वो एक मीटिंग अरेंज करते हैं क्लाइंट के साथ. क्यों? क्योंकि ऑल डेटा वो वहां पे गैदर करते हैं, लाइक व्हाट द कस्टमर वांट्स टू बिल्ड, हु विल बी द एंड यूजर, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोडक्ट. तो वो कौन सी इंफॉर्मेशन लेते हैं, लाइक कस्टमर को एक्चुअल में क्या एप्लीकेशन बना के चाहिए या क्या डेवलप करके चाहिए, एंड यूजर कौन है जो ये यूज करने वाला है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोडक्ट का. बिफोर क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट, अ कोर अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी नेसेसरी. कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट या कोई भी दूसरा प्रोडक्ट बनाने से पहले उसका कोर नॉलेज, कोर अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है. अब फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अ क्लाइंट वांट्स टू हैव एन एप्लीकेशन व्हिच कंसर्न मनी ट्रांजैक्शन. अब एक क्लाइंट है जिसको मनी ट्रांजैक्शन के लिए एप्लीकेशन बनाना है. इन दिस मेथड द रिक्वायरमेंट हैज टू बी प्रिसाइज लाइक व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन. In this method, the requirement has to be precise, like what kind of operation will be done, how it will be done, in which currency it will be done. आप require money transaction का एक एप्लीकेशन बनाना. एक्सक्यूज मी मैम. यस मैम आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है. प्लीज चेक योर नेटवर्क. आपका नेटवर्क चेक करो, बाकी स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम है. मैम मैं वाईफाई से रहता हूँ. नो मैम. मैं भी कॉलेज में से लेक्चर ले रही हूँ, यहाँ पे फुल नेटवर्क. ओके मैम, ओके कंटिन्यू. So a client wants to have an application which concern. अब एक मनी ट्रांजैक्शन का अगर एप्लीकेशन बनाना है तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन इट विल बी डन, वो ऑपरेशन किस तरह से करने वाला है, हाउ इट विल बी डन, किस तरह से ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करने वाला है, करेंसी कौन सी यूज करने वाला है, लाइक डॉलर है, रुपीज है, या यूरोज है, पाउंड्स है, कौन सी करेंसी वो यूज करने वाला है. दिस इज द प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस. ओके, फर्स्ट स्टेज इज क्लियर टू ऑल. यस मैम. ओके, देन सेकंड स्टेज इज डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स. रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से डिफाइन किया जाता है. अब दिस फेज इज एक्सप्लेन. Once the requirement analysis is done, the next stage is to certainly represent and document the software requirements and get them accepted from the project stakeholders. अब एक बार रिक्वायरमेंट आ गई, उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज इज डॉक्यूमेंटेशन. मीन्स रिक्वायरमेंट्स अगर क्लियर है, हमें उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स अगर जो टीम एप्लीकेशन बनाने वाली है उनको अगर वो रिक्वायरमेंट्स क्लियर है, तो वो क्या बनाती है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाती है. उस डॉक्यूमेंट में फिर वो रिक्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से फिर उनका डॉक्यूमेंटेशन होता है. उनको हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन और डायग्राम्स होती है. लाइक जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे ना नेक्स्ट सेम में, तो आपको भी डॉक्यूमेंटेशन रहेगा. तो उस डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या आता है, एग्जिस्टिंग सिस्टम में क्या था, और व्हाई वी क्रिएट अ न्यू सिस्टम, एक्जिस्टिंग सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थे और हम क्यों न्यू सिस्टम बना रहे हो. उसके बाद आएगा उसके स्पेसिफिकेशंस, विच टेक्नोलॉजी वी आर यूज, कौन से स्पेसिफिकेशन हम यूज कर रहे हैं. फिर डायग्राम्स आएंगे आपकी, ईआर डायग्राम, डीएफडी डायग्राम, क्लास डायग्राम, ऐसे सब डॉक्यूमेंटेशन में आता है. तो फिर ये डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हम स्टेक होल्डर के पास जो है वो भेजते, वो फिर वो डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं कि हाँ हमारी रिक्वायरमेंट्स मीन्स जो भी प्रोजेक्ट टीम है उनको हमारी रिक्वायरमेंट्स अच्छे से अंडरस्टैंड हुई है या नहीं हुई है, वो फिर वो ये डॉक्यूमेंटेशन देख के या पढ़ के वो फिर उनको बताते. दिस इज accomplished through SRS, software requirement specification document, which contains all the product requirements to be constructed and developed during the project life cycle. अब ये जो है ये कौन से
इसके थ्रू कंप्लीट किया जाता है उसको बोलते हैं SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट उसको बोला जाता है। फिर वो क्या क्या करता है, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसका डिजाइन कैसे रहेगा, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करके हम वो डेवलप करेंगे, कौन सा टेस्टिंग हम यूज करेंगे, पूरे लाइफ साइकिल के प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के थ्रू हम उसे कैसे बनाने वाले हैं, वो सब इस फेज में किया जाता है। मीन्स क्या, हमारी जो रिक्वायरमेंट क्लाइंट ने हमें दी है वो एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में यहाँ पे डिफाइन की जाती है। गॉट इट स्टूडेंट? गॉट इट? तो इस फेज का अगर एग्जांपल देना हो तो अगर मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखा सकती हूँ, बट उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। जब लेक्चर खत्म होगा ना हमारा तो मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाऊंगी कि किस तरह से प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो किया जाता है। ओके, थर्ड स्टेप इज डिजाइनिंग द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर डिजाइन कैसे करना है। द नेक्स्ट फेज इज अबाउट टू ब्रिंग डाउन ऑल द नॉलेज ऑफ रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर product project. This phase is the product of the last two, like inputs from the customer and requirement gathering. अब इस फेज में क्या होता है, जो लास्ट टू फेजेस हमारे हुए उनसे इनपुट लिया जाता है और रिक्वायरमेंट गैदरिंग की जाती है। अब इस फेज में क्या किया जाता है, एक डमी मॉड्यूल जिसे हम बोलते हैं ना, वो उस हिसाब से मॉड्यूल्स जो है वो रफ डिजाइन जो है यहाँ पे सॉफ्टवेयर का किया जाता है। लाइक पूरे रिक्वायरमेंट्स अगर हमें अंडरस्टैंड है, उसके बाद उस रिक्वायरमेंट का एनालिसिस किया जाता है और उस हिसाब से डिजाइन जो है वो बनाया जाता है कि ऐसा ऐसा दिखेगा प्रोडक्ट, ऐसा ऐसे 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 इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लो होगी हमारे प्रोडक्ट में। तो ये होगा डिजाइनिंग द सॉफ्टवेयर। गॉट इट? अब आप पूछोगे कि फ्लो कैसे पता चलता है मैम, कि कैसे इंफॉर्मेशन या डेटा जो है हमारे प्रोडक्ट में फ्लो होगा। तो उसके लिए डायग्राम्स होते हैं, क्लास डायग्राम, यूएमएल डायग्राम, डीएफडी डायग्राम, ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम हम क्यों यूज करते हैं, जो ईआर डायग्राम होता है वो उससे हमें डेटाबेस के रिलेशनशिप जो होते हैं वो पता चलते हैं। डीएफडी डायग्राम, यूएमएल डायग्राम, उसे हमें पता चलता है कि किस तरह से क्लास डायग्राम होती है, बिहेवियर डायग्राम, स्टेट डायग्राम, ऐसे बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि कैसे हमारा डेटा जो है वो प्रोजेक्ट में या हमारे मॉड्यूल में फ्लो होने वाला है। ओके, स्टेज थर्ड क्लियर? सबको क्लियर है स्टेज थर्ड? यस मैम। ओके, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखा रही हूँ अभी प्रोजेक्ट का। मेरे पास एक प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट है, तो आपको उससे पता चलेगा कि किस तरह से डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट किस तरह से बनाया जाता है। माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? स्क्रीन विजिबल है मेरा? यस मैम। क्या दिखाई दे रहा है, इंडेक्स दिखाई दे रहा है प्रोजेक्ट का? यस मैम। तो ये एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट है जो मेरे स्टूडेंट्स ने किया है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो पहले आता है हमारा इंडेक्स, उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम, सिस्टम का इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया जाता है। उसके बाद एग्जिस्टिंग सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थे और क्यों हमने ये सिस्टम बनाया, देन नीड ऑफ द सिस्टम एक्सप्लेन किया जाता है, देन प्रपोज सिस्टम क्या है हमारी, व्हाई वी आर क्रिएटिंग दिस सिस्टम, देन रिक्वायरमेंट एनालिसिस। दिस इज द रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस में देखो यहाँ पे फिजिबिलिटी स्टडी होता है कि टेक्निकली क्या क्या चाहिए उनको, इकोनॉमिकली क्या, ऑपरेशनल क्या क्या है सिस्टम में, देन फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स कि किस तरह से हमने जो डेटा है या रिक्वायरमेंट है वो गैदर किए यहाँ पे। ओके, देन हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या लगने वाली है हमें, सॉफ्टवेयर हम कौन से यूज करने वाले हैं, देन सिस्टम डिजाइन आता है। अब सिस्टम डिजाइन में देखो ये जो है ये सिंबल्स है ईआर डायग्राम के लिए यूज करने। अब देखो यहाँ पे ईआर डायग्राम जो है वो ड्रॉ किया है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारे
डेटाबेस में कौन से टेबल है और उनमें कैसे कैसे रिलेशनशिप है, लाइक एम्प्लॉय टू अलाउंस देयर के बीच में मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है, ओके। और एडमिन टू एम्प्लॉय के बीच में अगर वन टू मेनी रिलेशनशिप हो सकता है। अब ये कंटेक्स्ट लेवल डायग्राम, यहाँ पे पता चलता है कि कैसे फ्लो जो है वो होगा या कैसे हम सिस्टम जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। डेटा फ्लो डायग्राम देखो, यहाँ पे डेटा किस तरह से फ्लो होता है वो सब इस डॉक्यूमेंट में जो है वो बताया गया है। दिस इज द फाइल डिजाइन, मीन्स हमारे कौन से टेबल है, कौन से उसमें फील्ड है, क्या क्या कंस्ट्रेंट हमने लगाए, कौन सा डेटा टाइप हमने यूज किया है, ये हो गए हमारे डेटाबेस। अब फॉर्म डिजाइन, फॉर्म डिजाइन में क्या हमारा लॉगिन पेज कैसे दिखेगा, होम पेज कैसे दिखेगा, ये डिजाइनिंग किस तरह से, तो इस तरह से जो है वो डॉक्यूमेंट जो है हम बनाते हैं हम लोग। गॉट इट स्टूडेंट, समझ में आया डॉक्यूमेंट किस तरह से होता है? यस मैम। ना Yes, ma'am. fourth stage is coding. Fourth stage is the most important stage in the any software development. अगर आपने कोडिंग ही नहीं की तो आप प्रोडक्ट बनाओगे कैसे? ओके, once the system design phase is over, the next phase is coding. सिस्टम डिजाइनिंग फेज हो जाने के बाद हम कोडिंग फेज जो है वो स्टार्ट करते हैं। इन दिस फेज डेवलपर स्टार्ट बिल्ड द एंटायर सिस्टम बाय राइटिंग कोड यूजिंग द चूजन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इस फेज में क्या होता है, डेवलपर पूरा सिस्टम जो है वो बनाना स्टार्ट करता है। कैसे? राइटिंग कोड। राइटिंग कोड मीन्स क्या, जो भी लैंग्वेज यूज किए उसके हिसाब से कोड जो है वो राइट किया जाता है। अगर क्लाइंट ने बोला है उनको प्रोडक्ट जावा में चाहिए तो जावा यूज करेंगे, अगर क्लाइंट ने बोला है उनको पाइथन में चाहिए तो पाइथन यूज करेंगे, अगर बोला है VB.NET, C शार्प, जो भी लैंग्वेज बोले उस हिसाब से कोड जो है वो डेवलप किया जाएगा। In the coding phase, tasks are divided into units or modules and assigned to the various developers. अब coding phase में क्या होता है, टास्क दिए जाते हैं, वो टास्क जो है एक यूनिट्स में और मॉड्यूल्स में डिवाइड किए जाते हैं वो, और वेरियस डेवलपर्स को वो असाइन किए जाते हैं। लाइक एक डेवलपर को बोला गया होगा कि आप ना मॉड्यूल का ये पार्ट डिजाइन करके दो, लाइक लॉगिन पेज और उससे रिलेटेड टेबल्स वगैरह, वो दूसरे को बोला गया होगा आप कॉन्टैक्ट पेज डिजाइन करके दो। तो इस तरह से मॉड्यूल्स बना के वो डेवलपर्स को असाइन किए जाते हैं। इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। कोडिंग फेज जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोडिंग हम एक दिन, पूरा प्रोजेक्ट का एंटायर प्रोजेक्ट का कोडिंग हम एक दिन में कर सकते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल थिंग। कितना भी शार्प डेवलपर हो, एक दिन में हम किसी सिस्टम का कोडिंग नहीं कर सकते। ओके, इन दिस फेज डेवलपर नीड्स टू फॉलो सर्टेन प्री डिफाइंड कोडिंग गाइडलाइंस। अब इस फेज में डेवलपर्स को कुछ प्री डिफाइंड गाइडलाइंस जो होती है वो फॉलो करनी पड़ती है। दे आल्सो नीड टू यूज प्रोग्रामिंग टूल्स लाइक कंपाइलर, इंटरप्रेटर, डिबगर टू जनरेट एंड इम्प्लीमेंट द कोड। अब इस फेज में प्रोग्रामर को बहुत सारे टूल्स जो है वो यूज करने पड़ते हैं। लाइक कंपाइलर, वो कंपाइल करके देख सकता है प्रोग्राम, इंटरप्रेट कर सकता है, डिबगर यूज कर सकता है अगर उसे समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े बड़े कोड होते हैं। जब भी कोडिंग स्टार्ट होता है तो बहुत बड़े बड़े कोड होते हैं, तो पता नहीं चलता एग्जैक्टली कि कहाँ पे एरर है या कौन सा स्टेटमेंट ये हो रहा है। तो वहां पे डिबगर जो है वो यूज किया जाता है। C++ आप लोगों ने डिबगर यूज किया होगा, तो डिबगर के हेल्प से हम प्रोग्राम डिबग कर सकते हैं। हमें पता चलता है कि एक्चुअल कहाँ पे जो है प्रोग्राम में एरर्स है। ओके, डिबगर पता है ना, वो क्लॉक वगैरह लगाते हैं और उसके बाद प्रोग्राम हम डिबग करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये हो गया कोडिंग फेज। कोडिंग फेज इज क्लियर टू ऑल? Yes, Now ma'am. next phase is testing. Once the software is complete and it is deployed in the testing environment, the testing team start testing the functionality of the entire system. एक बार कोडिंग कंप्लीट हो गया उसके बाद टेस्टिंग इन्वायरमेंट जो होता है उसमें जो होता है वो सॉफ्टवेयर जो होता है, वो एप्लीकेशन जो होता है वो डिप्लॉय किया जाता है। अब उसके बाद टेस्टिंग टीम का वर्क चालू होता है। टेस्टिंग टीम क्या करता है, फंक्शनैलिटी
टेस्टिंग स्टार्ट करता है कि फंक्शनैलिटीज अच्छे से वर्क हो रही है या नहीं हो रही. दिस इज डन टू वेरीफाई दैट द एंटायर एप्लीकेशन वर्क्स अकॉर्डिंग टू द कस्टमर अच्छा रिक्वायरमेंट. अब टेस्टिंग क्यों किया जाता है? वेरीफाई करने के लिए कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ठीक एप्लीकेशन है वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है. ड्यूरिंग द फेज क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग टीम में फाइंड सम बग्स एंड डिफेक्ट्स व्हिच दे कम्युनिकेट टू डेवलपर. अब इस फेज में क्या होता है, अगर क्वालिटी एश्योरेंस और टेस्टिंग टीम को कुछ बग या डिफेक्ट्स मिलते हैं तो वो डेवलपर से कम्युनिकेट करते हैं वहां पे. क्यों? क्योंकि वो बग्स और डिफेक्ट्स जो है वो डेवलपर सॉल्व करके देता है. The development team fixes the bug and send back to quality assurance for a retest. अब ये टेस्ट जो है वो ये टीम जो है वो क्या करती है, ये बग्स जो है वो फिक्स करती है और क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट टीम के पास रीटेस्ट करने के लिए फिर से भेजा जाता है. दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द सॉफ्टवेयर इज बग फ्री, स्टेबल एंड वर्किंग अकॉर्डिंग टू द बिजनेस नीड्स ऑफ द सिस्टम. अब ये प्रोसेस कब तक चलता है? जब तक पूरा सॉफ्टवेयर बग फ्री नहीं हो जाता, एक स्टेबल एप्लीकेशन जब तक हमें नहीं मिल जाता, और जब तक बिजनेस नीड, वो सॉफ्टवेयर किस बिजनेस नीड्स के लिए हमने बनाया है उसके लिए उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता नहीं है, स्टेबल होता नहीं है, तब तक टेस्टिंग का जो प्रोसेस है वो पूरा कंटिन्यूअसली चलते रहता है. ओके. Now, 6 phase is installation and deployment. Once the software testing phase is over and no bugs or errors left in the system, then the final deployment process start. एक बार टेस्टिंग पूरा हो गया, उसमें कोई बग नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं, कोई एरर नहीं है, उसके बाद फाइनल सिस्टम जो है वो डिप्लॉयमेंट प्रोसेस के लिए स्टार्ट होते. डिप्लॉयमेंट मीन्स क्या होता है, पता है किसी को? अब डिप्लॉयमेंट फेज क्या होता है, जो क्लाइंट का इन्वायरमेंट होता है उस पे सिस्टम जो है वो टेस्ट करने के लिए वहां पे दिया जाता है. ओके. अब वहां पे क्या होता है, बेस्ड ऑन द फीडबैक गिवन बाय प्रोजेक्ट मैनेजर द फाइनल सॉफ्टवेयर इज रिलीज एंड चेक फॉर द डिप्लॉयमेंट इश्यूज इफ इन. अब प्रोजेक्ट मैनेजर जब देखता है प्रोजेक्ट, वो उस पे फीडबैक देता है कि यस सॉफ्टवेयर इज गुड, नाउ वी कैन रिलीज दिस सॉफ्टवेयर इन द मार्केट. और उसके बाद वो चेक करता है कि डिप्लॉयमेंट में कुछ इश्यूज है या नहीं. अगर नहीं है तो वो सॉफ्टवेयर रिलीज के लिए भेजा जाता है. ओके. दैट फेज 7 मेंटेनेंस. Once the system is deployed and customers start using the developed system, following 3 activities occur. अब मेंटेनेंस फेज में क्या होता है, एक बार सिस्टम डिप्लॉय हो गया, कस्टमर ने उसे यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो 3 एक्टिविटीज जो है वो हमें मेंटेनेंस फेज में करना पड़ता है. फर्स्ट बग फिक्स, देन अपग्रेड, देन एनहांसमेंट. ओके. बग फिक्स एक्टिविटी में क्या होता है, बग्स आर रिपोर्टेड बिकॉज ऑफ सम सिनारियोज व्हिच आर नॉट टेस्टेड एट ऑल. अब कभी कभी बग्स आते हैं कौन से सिनारियोज में कि वो छोटी सी फंक्शनैलिटी है, इसे क्या टेस्ट कर, ऐसा अगर होता है तो वहां पे बग्स अगर ऑकर होते तो वो बग फिक्सिंग वहां पे किया जाता है. अपग्रेड द एप्लीकेशन टू द न्यूअर वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर. हम हर बार हमें अपग्रेड आता है, मोबाइल पे हो या हमारे कंप्यूटर पे हो, हमें छोटे छोटे अपग्रेडेशन जो है वो आते हैं सॉफ्टवेयर को, तो वो भी मेंटेनेंस फेज में जो है वो किया जाता है. अगर हम सिस्टम को या एप्लीकेशन को अपग्रेड नहीं करते तो उसका परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है. इसके लिए अपग्रेडेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज इन most important activity is in the maintenance phase. Then enhancement, adding some new features into the existing software. अब enhancement means क्या, कोई अगर न्यू फीचर हमें इंट्रोड्यूस करना है तो उसे हम सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हैं, तो इससे क्या होता है, एनहांसमेंट जो होता है वो आता है. लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जो एप्लीकेशन हम यूज करते हैं तो कुछ ना कुछ वो एनहांस करते रहते हैं उन सॉफ्टवेयर्स में. ओके. गॉट इट स्टूडेंट, समझ में आया? The main focus of this SDLC phase is to ensure that needs continue to be met and that the system continue to perform as per the specification mentioned in the first phase. अब main focus क्या है SDLC phase का, to ensure needs
कि कस्टमर्स की नीड्स क्या है और उसके हिसाब से जो है वो परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा SDLC मॉडल लाइफ साइकिल जो है वो खत्म होता पॉइंट जो है वो खत्म होता है। क्लियर, SDLC लाइफ साइकिल इज क्लियर टू ऑल? एनी प्रॉब्लम इन दिस फेजेस स्टूडेंट्स? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो। ओके। आपको ये फेजेस जो है वो याद रखना है और अगर ऑफलाइन एग्जाम हुआ तो ये फेजेस आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। अगर ऑनलाइन हुआ तो वहां पे आपको फेजेस का फेजेस पूछे जा सकते हैं कि कौन सा फेज होता है, क्या क्या होते हैं। ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज जेनेरिक प्रोसेस मॉडल। जेनेरिक प्रोसेस मॉडल क्या होता है देखो यहाँ पे। अब वहां पे सॉफ्टवेयर प्रोसेस का एक फ्रेमवर्क होता है। अब वहां पे क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस होती है, एक प्रोसेस फ्रेमवर्क होता है जिसमें अम्ब्रेला एक्टिविटीज होती है। अब उस अम्ब्रेला एक्टिविटीज के अंदर फ्रेमवर्क एक्टिविटीज होती है। क्या क्या होता है वहां पे? टास्क होते हैं, इंजीनियरिंग एक्शंस होती है, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज जो होते हैं वो जेनेरिक प्रोसेस मॉडल के अंदर यहाँ पे होती है। दिस इज द डायग्राम ऑफ जेनेरिक प्रोसेस मॉडल। ओके, आर यू एबल टू सी द डायग्राम? डायग्राम दिखाई दे रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। सो ये डायग्राम जो है आपको अच्छे से ध्यान में रखना है ना। As we discussed before, a generic process framework for software engineering defines 5 framework activities. अब generic process मॉडल में जो है, फ्रेमवर्क में जो है 5 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक्टिविटीज होती है। 5 फ्रेमवर्क एक्टिविटीज वहां पे होती है। कौन सी? कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। ओके। तो जेनेरिक प्रोसेस मॉडल जो है ये 5 एक्टिविटीज से स्टार्ट होता है, बनता है। communication, planning, modeling, construction and deployment. These are the most important activities in the generic process model. Okay, first is communication. The software development start with the communication between customer and developer. अब ये एक्टिविटी क्यों होती है? इसमें क्या होता है, कस्टमर और डेवलपर के बीच क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, और वो कम्युनिकेशन का यूज करके एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है हम स्टार्ट करते हैं। ओके। Then second is planning. It consists of complete estimation, scheduling for project development and tracking. Planning means क्या? Complete प्रोजेक्ट किस तरह से स्टार्ट होगा, क्या क्या कॉस्ट लगेगा, कॉस्ट एस्टिमेशन यहाँ पे किया जाता है। प्रोडक्ट पूरे प्रोजेक्ट को शेड्यूल किया जाता है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट को शेड्यूल किया जाता है और ट्रैक किया जाता है प्लानिंग फेज में। कब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, कौन सा रिलीज, कौन से डेट, कौन से इसमें जाएगा, इस तरह से पूरा प्लानिंग जो है इस फेज में जो है वो किया जाता है। ओके। नाउ थर्ड इज मॉडलिंग। मॉडलिंग फेज मीन्स क्या? मॉडलिंग कंसिस्ट ऑफ कंप्लीट रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड द डिजाइन ऑफ द प्रोजेक्ट लाइक अल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, etc। मॉडलिंग में क्या होता है, रिक्वायरमेंट का पूरा एनालिसिस किया जाता है और उसके बाद बहुत सारे डिजाइन जो है वो किए जाते हैं। लाइक किस तरह से आपको समझ में किस तरह से डेवलपर्स को समझ में आएगा, तो अल्गोरिदम्स वहां पे लिखे जाते हैं, फ्लो चार्ट्स लिखे जाते हैं। Algorithm is the step-by-step solution to the problem and the flowchart shows a complete flow diagram of a program. Algorithm क्या होता है, जो भी प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम से या एप्लीकेशन जिस तरह से बनाना है उसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मींस क्या होता है, यहाँ पे अल्गोरिदम होता है। एंड फ्लो चार्ट क्या होता है कि हमारे प्रोग्राम में किस तरह से फ्लो होने वाला है, हमारे प्रोजेक्ट का फ्लो क्या होगा वो हम फ्लो चार्ट के थ्रू वहां पे दिखा सकते हैं। ओके।
ये जो जेनरिक प्रोसेस मॉडल है या ये जो फ्रेमवर्क है, ये एक स्टैंडर्ड वे में बिल्ड एंड डिप्लॉय एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होता है। तो ये जो मेथड्स है, ये एक स्टैंडर्ड मेथड्स होती है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? कंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ कोड जनरेशन एंड द टेस्टिंग पार्ट। जो एसडीएलसी में देखे है ना हमने फेजेस, वही यहाँ पे इंक्लूड किए। वहाँ पे 7 फेजेस है, पर यहाँ पे 4 एक्टिविटीज में वो फेजेस जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं। कंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ कोड जनरेशन एंड टेस्टिंग। कंस्ट्रक्शन फेज किससे बनता है? कोड जनरेशन मींस वहाँ पे कोडिंग होता है, और टेस्टिंग पार्ट। कोडिंग पार्ट इम्प्लीमेंट्स द डिजाइन डिटेल्स यूजिंग एन एप्रोप्रिएट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोडिंग पार्ट क्या करता है? यहाँ पे डिजाइन डिटेल्स जो है वो अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज करके हम वहाँ पे डिजाइन जो है वो बनाते हैं। टेस्टिंग इज टू चेक वेदर द फ्लो ऑफ कोडिंग इज करेक्ट और नॉट। टेस्टिंग क्या चेक करता है यहाँ पे कि फ्लो जो है, कोडिंग जो है वो करेक्ट है या नहीं। टेस्टिंग ऑल्सो चेक दैट प्रोग्राम प्रोवाइड्स डिजायर आउटपुट। टेस्टिंग में और क्या फंक्शन ये होता है, चेक होता है कि डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है या नहीं। जो भी हम इनपुट दे रहे हैं या जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से उस हिसाब से हमें आउटपुट मिल रहा है या नहीं, वो टेस्टिंग फेज में जो है वो चेक किया जाता है। डिप्लॉयमेंट स्टेप कंसिस्ट ऑफ डिलीवरिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर एंड टेक फीडबैक फ्रॉम देम। डिप्लॉयमेंट फेज में क्या कैसे कंसिस्ट होती है? जहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर किया जाता है कस्टमर को, और कस्टमर से फीडबैक लिया जाता है। इफ द कस्टमर वांट्स टू सम करेक्शन और डिमांड्स फॉर एडिशनल कैपेबिलिटीज, hence the changes is required for improvement in the then the changes is required for improvement in the quality of the software। अब कस्टमर अगर कोई फीडबैक देता है या उसे कोई करेक्शन चाहिए या उसके कोई डिमांड्स है, एडिशनल कैपेबिलिटीज उसको अगर चाहिए, तो उस हिसाब से सॉफ्टवेयर में जो है हमें उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है। उस हिसाब से हमें सॉफ्टवेयर में और एनहांसमेंट जो है वो करना पड़ता है। ओके, गॉट इट स्टूडेंट? समझ में आया सबको? Yes or no? In addition, a set of umbrella activities। अब ये प्रोसेस जो है जेनेरिक प्रोसेस में, उसमें कौन सी मेन एक्टिविटीज जो होती है वो हमने देख, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग। अब और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज इसमें रहता है सेट ऑफ अम्ब्रेला एक्टिविटीज। सेट ऑफ अम्ब्रेला एक्टिविटीज जो है वो होता है जेनेरिक प्रोसेस मॉडल में। तो वो अम्ब्रेला एक्टिविटीज क्या क्या होती है? प्रोजेक्ट ट्रैकिंग and control, risk management, quality assurance, configuration management, technical reviews and others are applied throughout the process। और दूसरी बहुत सी processes। okay, next question is how the framework activities and the action and tasks that occur within each activity are organized with respect to sequence and time। अब फिर ये एक्टिविटीज का यूज क्या है या क्या टास्क ये एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, ये क्वेश्चंस आते हैं हमें। किस तरह से इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है और किस तरह से टाइम जो है उस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए स्पेंड किया जाता है। तो इसके लिए प्रोसेसेस का फ्लो जो है, तो उनका इस क्वेश्चन का आंसर के लिए प्रोसेस का फ्लो किस तरह से होता है वो यहाँ पे बताया गया है। ओके, तो प्रोसेस का फ्लो किस तरह से होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पे जेनेरिक प्रोसेस मॉडल जो है वो उसके जो प्रोसेस है वो किस तरह से फ्लो होती है, फिर उसका यूज कैसे होता है, और फिर कैसे मॉडल्स जो है वो ये एक्टिविटीज जो है वो यूज करते हैं उनके सीक्वेंस में। ओके, ये सब जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। आज के जो पॉइंट्स है वो सबको क्लियर है? यस और नो स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. ओके, सो हम एक क्विक रिवीजन लेते हैं। आपको कितना पता कितना ये हुआ है? आप मुझे बताओ एसडीएलसी में कितने फेजेस होते हैं? हाउ मेनी फेजेस इन द एसडीएलसी लाइफ साइकिल? और कौन से फेजेस होते हैं? इज एनीवन कोई बता सकता है कितने फेजेस होते हैं और कौन से फेजेस है एसडीएलसी की? 7. या 7? कौन से? पहला फेज कौन सा होता है, उसके बाद कौन सा फेज आता है?
requirement analysis, ओके, उसके बाद designing, नो नो, नॉट डिजाइनिंग, उसके पहले एक फेज है। कम्युनिकेशन, नो, defining, यस, रिक्वायरमेंट डिफाइन करते हैं हम लोग। ओके, उसके बाद आता है हमारा डिजाइन फेज। designing, ओके, डिजाइनिंग के बाद कौन सा फेज आता है? कोडिंग फेज, coding, कोडिंग, कोडिंग, यस। कोडिंग के बाद हमारा आता है टेस्टिंग, टेस्टिंग। testing, टेस्टिंग के बाद कौन सा फेज आता है? डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड और डिप्लॉयमेंट के बाद आता है हमारा मेंटेनेंस फेज। मेंटेनेंस। ओके, और इस तरह से ये लाइफ साइकिल जो है वो चलती ही रहती है। मीन्स अगर दूसरा कोई प्रोजेक्ट आता है, फिर से उस वहां पे रिक्वायरमेंट होगा, फिर डिफाइनिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग। तो ये एक कंप्लीट लाइफ साइकिल है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। अब उसके बाद ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो फेजेस है उनका यूज करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल जो है वो बनाए गए। लाइक वाटरफॉल मॉडल है, स्पाइरल मॉडल है, और रैड मॉडल है, रैपिड एक्शन डेवलपमेंट मॉडल है, इटरेटिव मॉडल है। ये सारे मॉडल्स है। अब वो ये जो मॉडल है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर डिपेंड रहता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के लिए कौन सा मॉडल यूज करेगा। अब कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन अभी भी वाटरफॉल मॉडल यूज करते। वाटरफॉल मॉडल इज द मीन्स बहुत ही पुराना मॉडल हम बोल सकते हैं, या बेसिक मॉडल जो है वो यूज किया जाता है। अब कोई कोई कंपनीज है या ऑर्गेनाइजेशन है वो अब अजाइल मॉडल यूज करता है। उसके बाद कोई कोई रैड यूज करता है। ये ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर डिपेंड रहता है कि उनको कौन सा मॉडल जो है वो यूज करना है। वो मॉडल वो कैसे डिसाइड करते हैं? जैसे रिक्वायरमेंट होता है क्लाइंट की तरफ से, जैसे रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से वो मॉडल्स यूज करते हैं। रिक्वायरमेंट किस तरह से है, किस तरह से उनको फिर बनाना है। इटरेशन मॉडल यूज होता है, फिर प्रोटोटाइपिंग मॉडल यूज करते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां पे मॉडल्स जो है वो यूज किया जाता है। ओके, क्लियर टू ऑल? यस मैम। Okay. So put your name with your roll number and mention Akodi or Pimpri into the chat box and don't leave the meeting. Okay. जब तक मैं बोलती नहीं हूँ तब तक किसी ने मीटिंग लीव नहीं करना है। ओके, कल मैंने गूगल क्लासरूम कोड शेयर किया था आप लोगों के साथ। आपने ज्वाइन किया है क्लासरूम? यस मैम। yes, यस मैम। नोट्स मिले आपको गूगल क्लासरूम पे? मैम चैप्टर 1 में सिर्फ 2 ही पेजेस है। व्हाट, 2 ही पेजेस आए? यस मैम। मैम चैप्टर 1 का 2 ही पेजेस है मैम। ओके, मैं चेक करती हूँ और फिर से वो अपलोड करती हूँ। ओके, ओके, तो वो दूसरा ही हो गया है। वो मैं डिलीट कर देती हूँ और उसके बाद आपको अलग से मीन्स फिर से भेजती हूँ। चैप्टर 2 के नोट्स आए हैं कंप्लीट आपके पास? हाँ मैम। ओके, और सिर्फ 39 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। व्हाट अबाउट अदर्स? जब तक आप गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं करोगे आपको नोट्स नहीं मिलेंगे। ओके, आपको क्लासरूम पे ही नोट्स मिलेंगी। क्लियर? व्हाट अबाउट आकोडी स्टूडेंट्स? आकोडी स्टूडेंट आपने आकोडी के स्टूडेंट्स आपने ज्वाइन किया है क्लासरूम? यस मैम। ओके, नोट्स मिले आपको? यस मैम। ओके, किसी को कोई डाउट है इन टुडेज लेक्चर?
हमारे ये थर्ड चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपको तीनों चैप्टर्स पे जो है वो असाइनमेंट दूंगी. ओके, आपको पता है ना असाइनमेंट आपको कंप्लीट करके देना होता है. Yes, ma'am. यस मैम तो पहले 3 चैप्टर्स पे आपको मैं असाइनमेंट दूंगी. अगर हमारा नेक्स्ट वीक तक चैप्टर खत्म हो जाता है तो फिर आपको हॉलीडेज में वो असाइनमेंट कंप्लीट करके फिर सबमिट करना है. ओके. ओके मैम Okay. Okay. So, thank you, student. Now you can leave the meeting and join your next lecture. Thank you so much. Have a nice day. थैंक यू मैम थैंक यू मैम. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम.